Let us now begin with the next session. I now invite Dr. Ramdas Avhad sir on the dais. May I request Dr. Chandana Virkar ma'am to kindly come forward and felicitate sir with a shawl, Shrifar, memento, bouquet, honorarium, seed ball, thank you card and the Marathi book. This is a token of our deep respect and gratitude for sir's valuable presence and contribution today. It is my privilege to introduce Ramdas Avhad sir to this august gathering. Dr. Avhad sir's introduction. Sir has more than 35 years of rich experience in all branches of Ayurveda. Dr. Avhad sir has made remarkable contributions to the field. He has successfully treated a wide range of complex conditions including male and female infertility, degenerative disorders, hypertension, diabetes, cancer and thyroid diseases. Sir specializes in Panchakarma and Basti Chikitsa, particularly in the regeneration of joints and bones with extraordinary results. He has been invited as a speaker at over 100 national and international conferences, sharing his expertise on Ayurveda and Panchakarma. Dr. Avhad sir has conducted more than 50 Ayurvedic health camps and seminars, actively promoting Ayurveda at the community level. He has also published extensively in Ayurvedic journals and authored acclaimed works such as Ramdas Krut Panchakarma Bodh, which received 2 state-level awards. At present, Sir leads the Bhandardara Ayurvedic Super Speciality Panchakarma Hospital and Infertility Center, Kopargaon, and continues to serve patients with deep dedication. We are truly honored to have you with us today, sir. Now we also have a special announcement. It is indeed a matter of pride for us that the Kannada translation of our book is being unveiled today at the hands of Dr. Ramdas Avhad sir. This important work has been translated into Kannada by Vaidya Tukaram Umrani sir. May I kindly invite Dr. Tukaram Umrani sir and Dr. Chandrakumar Deshmukh sir to the dais. I also request Dr. Tapan Kumar sir and Dr. Talhar sir to join us on the dais. Thank you so much, sirs. I request you to kindly be seated in the audience now. And now we are eager to hear from Dr. Ramdas Avhad sir himself. Sir, may I request you to kindly share your perspective on emergency management in Ayurveda and guide us further with your valuable thoughts. सबसे पहले इस इमरजेंसी परिसंवाद के लिए आप पूरे भारतवर्ष से नैसर्गिक आपत्ति को मात करते हुए यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँचे, इसलिए आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत।
सिर्फ गोगटे सर ने ताली बजाई। आज के इस परिसंवाद के लिए उपस्थित मेरे सम्माननीय व्याख्याता मित्र वैद्य तपन जी, चंद्रकिरण, उदय, मसाडे सर और इस कार्यक्रम के सही मायनों में शोभा रहने वाले आप सभी आयुर्वेद प्रेमी, वैद्य भाई और बहनों, सबसे पहले दो बातों के लिए मैं आयोजक गोगटे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। नंबर एक, सिर्फ ग्रंथ में रहने वाली विद्ध कर्म और अग्नि कर्म की प्रैक्टिस व्यवहार में लाने का महत्वपूर्ण काम जिन्होंने किया, उन वैद्य राब गोगटे सर का विद्ध कर्म प्रचार प्रसार का एवं आयुर्वेद प्रचार प्रसार का कार्य गोगटे परिवार इस आयोजन के साथ आगे बढ़ा रहा है, इसलिए मैं उनको मन से साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नंबर दो, उनकी सोच को मैं सलाम करना चाहता हूँ, क्योंकि यदि हम आयोजन देखें तो इमरजेंसी पे सुनना है, तो सबसे पहले माइंड को रिलैक्स कर लिया। उसके बाद में मसाडे सर ने रूल्स बताए, वो रूल देखने के बाद तपन जी बोले कि ये यदि मैं सुनता तो मैं कभी प्रैक्टिस नहीं करता। यानी वो टेंशन्स को उस रूल के बारे में बताया, फिर उसके बाद में मुझे इमरजेंसीज के बारे में बताने के लिए बोला है, और यदि इसमें कोई बोर होते हो तो उसका सोल्यूशन भी उन्होंने तपन जी के साथ में यहाँ पे रखा है, क्योंकि इसके बाद में तपन जी बोलने वाले हैं। और माइंड हल्का पुल्का हो गया कि उसके बाद में चंद्रकिरण और उदय अग्निकर्म और विद्ध कर्म के दाग देने के लिए तैयार है। तो मैं गोगटे परिवार को तहे दिल से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम सभी भाग्यवान सात्विक आत्माएं हैं, क्योंकि ईश्वर ने इस डिवाइन शास्त्र के द्वारा रुग्ण सेवा करने हेतु हमें चुना है। और तुम लोग तो काफ़ी भाग्यवान हो, क्योंकि तुम्हारा जो ये एरा चल रहा है और तुम जिस सुवर्ण युग में प्रैक्टिस करने वाले हो, इसके लिए भाग्य चाहिए। नहीं तो हमारा ज़माना था 1988 में मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की तो मेरे घर वाले ही बोलते थे कि कहाँ आयुर्वेद कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे फर्क होता है। एक पेशेंट ने मुझे सुनाया था, बेटा आयुर्वेद स्लो होता है, नाना को दवा देते तो पोते को फर्क पड़ेगा। है क्या आयुर्वेद इतना स्लो? ये तब तुम बोल रहे हो जब इतने दिनों से आयुर्वेद देखते आए हो, सुनते आए हो। अभी जस्ट 6 महीने पहले नासिक में एक लेडीज़ का मुझे फ़ोन आता है कि सर आपकी विजिट 2nd सैटरडे को है, तो मेरे पिताजी को लेकर आना है। मैंने कहा अपॉइंटमेंट ले लो, आ जाइए। तो मैंने कहा क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा उनका रोड एक्सीडेंट हुआ है, हेड इंजरी है और सबड्यूरल हेमाटोमा है। तो मैंने कहा वो तो आईसीयू में हो गए। तो नहीं, बोले वो घर में है। मैंने कहा ऐसे कैसे घर में? तो बोले उनको कुछ नहीं हुआ सर, बाइक फिसल गई, हेड इंजरी हो गई, हम फिर भी हॉस्पिटल गए, एमआरआई करवाया, 27 mm का हेमाटोमा सबड्यूरल है, लेकिन उनको कोई भी लक्षण नहीं। फिर भी 72 आवर्स उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, लेकिन अब कुछ नहीं। तो बोले कि क्राइनियोटॉमी करनी पड़ेगी, वो निकालना पड़ेगा। लेकिन हमने सोचा कुछ तकलीफ नहीं है तो एक बार आयुर्वेद ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आ जाओ। और उस सैटरडे के दिन आ गए। एमआरआई में था वो सबड्यूरल हेमाटोमा 27 mm का। मैंने कहा कुछ लक्षण तो है ही नहीं, तो ट्रीटमेंट करते। तो सिंपल शोथ है, वहाँ पे क्लॉट से ब्लड का बड़ा, तो कैशोर गूगल, त्रिफला गूगल, गोक्षरादि गूगल सब दे दिया और कुछ दवा दे के मैंने कहा कि कुछ भी लक्षण होता है, कुछ भी तकलीफ होती है तो तुरंत जाके भर्ती हो जाना। 15 दिन में कुछ नहीं हुआ और फिर फॉलोअप को आते हो तो फिर से एक एमआरआई कर लेकर आ गए। और मेरे पास जब आए तो मैंने एमआरआई देखा, मुझे खुद को गारंटी नहीं थी कि ये कम होने वाला है। ट्रीटमेंट थी, दे दी, और जब एमआरआई देख रहा हो तो क्लॉट दिख ही नहीं रहा था। रिपोर्ट में देखा तो 27 mm से वो सबड्यूरल हेमाटोमा 3 mm पे आ गया था।
कैसे तालियां बजती तो अच्छा लगता है। तो इतने इंस्टेंट रिजल्ट उसमें मिल गया था। आज भी मेरे कई कलीग्स बोलते हैं कि तुम्हारा अच्छा है यार, तुम्हारे पास कोई एक्यूट केसेस नहीं आते हैं, जबकि पूरे भारतवर्ष के वैद्यों के पास मॉडर्न से ज़्यादा एक्यूट केसेस आजकल आने लगे हैं। हम हमारे रूटीन प्रैक्टिस में देखते हैं। उस समय ये भी बोलते थे कि तुम्हारे पास तो क्रॉनिक आते होंगे, टाइफाइड मलेरिया नहीं आता होगा, और इमरजेंसी तक तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो इमरजेंसी किसी के पास भी कभी भी आ सकती है। अभी जस्ट 3 वीक्स पहले की बात है, एक CLD की पेशेंट, क्रॉनिक लीवर फेल्यूर, जुन्नर से थी और ह्यूज असाइटिस लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। मुझे समझ में नहीं आता, हर एक डॉक्टर बोलता है कि CLD आजकल कॉमन हो गया ये भी, कि लीवर ट्रांसप्लांट करवा लो। पेशेंट आता है कि कहता है कि लीवर ट्रांसप्लांट बोला है, तो मैं तुरंत बोलता हूँ कौन सी दुकान में मिलता है। डॉक्टर बोल तो देते हैं, पेशेंट तैयार भी होता है, लेकिन लीवर कहाँ है देने के लिए। तो वो भी काफ़ी 2-3 महीने में काफ़ी सेटल हो गई, असाइटिस गया, और जब CLD होता है तो इसोफेजियल वायरसेस होते ही होते हैं। तो इसको भी सब बोला था प्रिकॉशन क्या लेना है, लेकिन उस दिन उसने क्या किया कि मुझे डॉक्टर से मेरी बात होगी, डॉक्टर ने कहा तुम सब कुछ खा सकते हो। और उसने क्या खाया होगा उस दिन रात को, बाजरी की रोटियां और चिकन, और सुबह रात को 3-4 बजे उसको ब्लड वोमिटिंग हो गई। फिर उसके घर वाले लेकर आ गए मेरे पास। मैं क्या 11:30 बजे पहुंचा हॉस्पिटल, तो आर्य स्टूडेंट ने बोला सर वो पेशेंट थी ना, उसको हेमेटेमेसिस हुआ, ब्लड वोमिटिंग हो गई, तो उसको लाया अंदर। तो मैंने कहा ले लो तुरंत पहले। जब वो आई एंटी चेम्बर से तो प्रोपी स्वेटिंग उसको था, और एकदम कंपन स्थिति में वो टेबल पे लिटा दिया। लेटने के बाद में भी उसने आँख बंद कर ली, BP चेक ही कर रहा था, तो उसको एकदम थोड़ा सा और पसीना आ गया और उठ के उल्टी हो रही करने लगी। तो हम बाकी ट्रे वगैरह लाने तक उसने पूरे एग्जामिन टेबल पे कम से कम 1 लीटर ब्लड तो डेफिनेटली होगा। पूरा टेबल, एग्जामिन टेबल, सब फ्लोर ब्लड से भर गया। तो मैं गुस्सा हो गया, मैंने कहा बोलना चाहिए था ना पहले सब। तो तुरंत मात्रा चाटन, सुवर्ण सुचेकर, सीतोपला, लक्ष्मीलास, ये कॉम्बिनेशन होता है, ये चाटन तुरंत उसको दे दिया। लेकिन फिर से वो बोलने लगी उल्टी हो रही, फिर से एक बार उल्टी की उसने। पल्स BP देखने का चांस ही नहीं था। मैंने कहा इसोफेजियल वायरसेस ओपन हो गए, इसको बाइंडिंग करना पड़ेगा। तो तुरंत व्हीलचेयर पे रखा, हमने कहा साइनाथ हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे उसको बाइंडिंग करना पड़ेगा। मैंने वहाँ पे फ़ोन करके कैजुअलिटी में बोल दिया कि मेरा पेशेंट ऐसा ऐसा हो रहा है। तो चाटन देने से बार बार उसको वही ड्राई वोमिटिंग जैसे हो रहा था, तो तुरंत वहाँ से वासा ग्रुप मेडिकल से मंगाया। आधी शीशी उसके मुंह में मैंने खाली कर दी, और मैंने कहा फिर जाओ लेके क्या होता है देखते। तो वहाँ से नीचे गए, वहाँ से उनके गाड़ी में शिरडी पहुँचे। शिरडी में भी डॉक्टर का 1 घंटे के बाद फ़ोन आया, सर हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं है, तो उनको लूनी प्रवरा भेजना पड़ेगा। मैंने कहा तुरंत भेजो, तब तक वोमिटिंग। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि सर घी पीने के बाद में अब तक उल्टी नहीं हुई है। फिर वहाँ से प्रवरा गए, प्रवरा वालों ने भी कहा कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं, तब तक तुम स्कोपी करके आओ संगमनेर से। उसको संगमनेर भेजा। पेशेंट का 7 बजे मुझे फ़ोन आता है कि सर स्कोपी कर ली। मैंने कहा तुम कहाँ हो? बोले संगमनेर भेजा उन्होंने। मैंने कहा पेशेंट कैसे? बोले वो ठीक है, कुछ नहीं, उसको अच्छी है, वो बोलती है। और उसके बाद में रात को 9:30 बजे वो प्रवरा हॉस्पिटल भर्ती होगा, और फिर दूसरे दिन उन लोगों ने बाइंडिंग किया। यानी जो रक्त छर्दी की इमरजेंसी थी वो तो आयुर्वेद ने ट्रीट कर ली थी, आगे चल के कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। फिर ये फिर से मैं बोलता हूँ कि आप भाग्यवान हो, क्योंकि हमारे ज़माने में कोई कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती थी। आजकल हर एक को चॉइस है, ठिकान कहाँ है, लेक्चरर कौन है, सब्जेक्ट क्या है, आने में कन्वीनियंट है क्या, ये चॉइस है। वो नहीं तो कुछ ना कुछ वेबिनार तो चलते ही रहते। फिर घर में लेटे लेटे खाते खाते, कैमरा भी ऑन रहता है, फिर भी खाते खाते चालू रहता है देखना उनका। 1989 में मेरे ज़िंदगी की पहली कॉन्फ्रेंस मैंने पूना में आत्तिक चिकित्सा के ऊपर हुई थी, वो की थी। उसके बाद में 2003 में हमने प्रभा आयुर्वेद की एक आत्तिक चिकित्सा की कॉन्फ्रेंस नांदेड़ में की थी, और उसके बाद में मेरे स्मरण के अनुसार ये तीसरी आत्तिक चिकित्सा के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है।
89 में मैं पुणे में आया था। तो टू बी फ्रैंक, मैं इंटर्नशिप तक, फाइनल में गलती से गोल्ड मेडल तक मिलने तक मैं एलोपैथ प्रैक्टिस करता था। तो माइंड का पकड़ा था, तो उस अत्येक चिकित्सा में आ गए हम। वहाँ पे कोई नाखून के पेन के बारे में बोल रहा है, कुछ पेट दर्द के बारे में बोल रहा है, कोई पाइल्स के बारे में बोल रहा है। तो मैंने कहा ये कहाँ अत्येक चिकित्सा हो गए। तो मैंने उस समय ऑर्गेनाइजर को एक चिट्ठी भेजी थी, अरे अत्येक चिकित्सा हार्ट अटैक के बारे में बोलो, पैरालिसिस के बारे में बोलो, स्ट्रोक के बारे में बोलो, ये क्या अत्येक चिकित्सा है क्या? हमारे नाम को भी कुछ वेटेज नहीं था, चिट्ठी शायद 10 दिन में गई होगी। लेकिन जब प्रैक्टिस शुरू की और उसके बाद में पता चला कि हर एक बात, हर एक चीज़ उस पेशेंट की, उस वैद्य के लिए, उस डॉक्टर के लिए इमरजेंसी होती है, अत्येक चिकित्सा होती है। अब ठीक है, मैंने मेरे प्रैक्टिस में जो जो इमरजेंसी देखी है वो आपके साथ में साझा करूँगा। तपन जी ने तो कार्डियक के भी किए हैं, तो वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं, इसलिए वो नहीं बोल सकूँगा मैं कुछ। लेकिन जो भी अत्येक इमरजेंसीज होती है वो हम पंचकर्म से किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं या शमन कर्म से किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। 1988 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की, 24 अक्टूबर 1988 कोजागिरी पूर्णिमा, जो कि अभी इस मंडे में है। तो 37 ईयर्स अभी इस कोजागिरी पूर्णिमा में मेरे प्रैक्टिस के कंप्लीट हो जाएंगे। और दिसंबर के महीने में, 1-2 महीने के बाद में ही, एक 60 प्लस के गृहस्थ कोपरगांव के ही थे, वो आम्ल पित्त के लिए मेरे पास आए। वो पुणे में भी आ चुके थे, नासिक में भी गए थे, और मैंने उनको आम्ल पित्त के लिए उस समय लघु सूचक कुछ पित्तक नियोग दिया होगा उस समय। तो 6 दिन के बाद में उनको काफ़ी आराम मिला। फीस कितनी थी 6 दिन की दवा के साथ? 5 रुपये। तो वो काफ़ी खुश थे आने के बाद, मुझे अच्छा लगा। और मैं भी शुरुआत में, हम तो तुरंत हवा में जाते, अरे नासिक के वैद्य से फ़ायदा नहीं हुआ, पुणे के वैद्य से फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे 6 दिन की दवा से उनको आराम हो गया। जबकि उनको तीव्र बद्धकोष्ठता थी, उसके कारण अम्लपित्त, और अम्लपित्त के कारण द्रवपित्त, कभी कभी छर्दी, ये लक्षण थे। तो मैं भी उत्साह में आ गया। तो मैंने कहा हम परमानेंट भी इलाज कर सकते हैं। वो बोले कैसे? मैंने कहा हम बस्ती चिकित्सा करेंगे। बस्ती करते हैं तो बस्ती से कॉन्स्टिपेशन निकल जाएगा, डेली पित्त का विरेचन होते जाएगा, तो आपको अम्ल पित्त नहीं रहेगा। तो बोले कि चलेगा। और मेरे पास तो कोई टॉयलेट था नहीं शुरुआत में, जिस टॉयलेट के लिए 1 साल में घर पे बैठा रहा कि टॉयलेट वाली ही जगह चाहिए, टॉयलेट वाली ही जगह चाहिए, साल भर नहीं मिली। अंत में बगैर टॉयलेट के छोटे से जगह में मैंने ओपीडी शुरू की थी। तो उनके घर में शाम को 6, साढ़े 6 बजे चला गया बस्ती देने के लिए। अभी हम तो कोई ज्ञानी होते नहीं शुरुआत में, अभी पूरे फाइनल ईयर तक एलोपैथी पढ़ा है, और गलती से गोल्ड मेडल मिलने के बाद में फिर आयुर्वेद के पास आए हैं, तो पूरा ज्ञान होता नहीं। तो बस्ती मैंने दे दिया, नीरो बस्ती। वो अंदर चले गए, टॉयलेट में उनका बेटा लेके गया, और अभी डॉक्टर घर आए तो चाय कॉफ़ी, उस समय काफ़ी रिस्पेक्ट था डॉक्टर्स के लिए। तो चाय आ गया, मैं चाय पी रहा था, पहले सिप ली और लड़का दौड़ते आ गया, सर जल्दी चलो जल्दी, पापा को चक्कर आके वो गिर गए। हम अंदर गए, उनको वहाँ से टॉयलेट से उठा के कॉट पे ला के रखा, प्रूफ विथ स्वेटिंग, बेहोश। मैंने कहा ये कैसे होगा? तो बोले पता नहीं, अंदर गया और एकदम संडास हो गया और ये कोलैप्स हो गए। पल्स देखी, मेरी पल्स मुझे सुनाई दे रही थी, उनकी कहाँ सुनाई दे रही थी। ब्लड प्रेशर लगाया 90-60, डायस्टोलिक तो लग भी नहीं रहा था, 90 लग रहा था सिर्फ। अब करे तो क्या करे? जैसे अभी मसाले सर बोले कि इन टाइम शिफ्ट करना है, लेकिन ईगो कि मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा आयुर्वेद का बोर्ड है, तो मैं एलोपैथी के पास क्यों भेजूँ? बैग में था स्वर्ण सूचकर की मात्रा, एक लक्ष्मी विलास, वो चाटन देते रहे, पानी मारा, थोड़ा सा हेड लो पोजीशन दे दी, और नब्ज देखते रहा। 10 मिनट फिर से चाटन दो, फिर 10 मिनट फिर से चाटन दो, थोड़ी थोड़ी पल्स अच्छी आने लगी, मेरी भी पल्स तब तक सेटल हो गई। और फिर बीपी 90, 60, 90 या 170 ऐसे लगने लगा, और रात को 8:45 बजे वो 110/70 हो गया। महीने पहले मेरा पसीना पोछा। फीस का तो कोई सवाल था नहीं, क्योंकि पहला ही व्यापद, जिंदगी का पहला बस्ती दिया, वो भी व्यापद।
और आने के बाद कोसता रहा नसीब को, साला अपने ही बारे में ऐसा क्यों हुआ। आने के बाद सोचता रहा कि ये क्या हुआ होगा। बाद में फिर दूसरे दिन मैं मिलने गया सुबह, एक कर्सी होती है ना कि गलती हुई तो जाना चाहिए दोबारा, तो मैं गया, कैसे, वो बोले नहीं ठीक है अब अच्छा है, लेकिन गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या हुआ था, बोले पूरा मेरा गुदोद्वार ही बाहर आ गया, यानी उनको 3rd स्टेज का पाइल्स था और प्रोलैप्टेक्टमी था उनको, लेकिन हमने भी पूछा नहीं और उन्होंने भी बताया नहीं। तो सिंपल थिंग है कि चरक ने अर्श में निरोबस्ती निषिद्ध माना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना है, लेकिन हम होशियार थे ना, गोल्ड मेडलिस्ट, तब समझ लिया कि चरकाचार्य ने एक लाफा मारा है कि बेटा पहले पढ़ ले, और उसके बाद में फिर वो ट्रीटमेंट, उसके बाद में आज तक लाखों की संख्या में बस्ती किए होंगे, लेकिन कभी व्यापद आए नहीं। जो भी व्यापद आए वो आयुर्वेद से ही, कर्म से ही ट्रीट किए और सब में कुशलता से बाहर निकले। अभी बस्ती तो आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा माना है, बस्ती के अलग अलग फायदे होते हैं। व्यापद के बारे में बोलना है तो सेपरेट लेक्चर होगा, इतने व्यापद भी सह है। अभी एक आज भी बोलते हैं और सही में है, फैक्ट है कि वैद्य लोगों को नाइट विजिट नहीं होती है। उस समय तो 88 के बाद में 89 की एक केस है, उस समय भी विजिट्स नहीं होते थे नाइट के, और डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे बोलते थे कि शायद पेशेंट काफ़ी समझदार थे, कुछ रात को प्रॉब्लम आता तो देखते, उनको पता चलता था, उनके बजाय डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि इतने वैद्य तो नामांकित नहीं होते थे उस समय, और हमारे नींद की भी चिंता उनको होती होगी, तो कुछ नाइट को उठाते नहीं थे। तो 1989 में 2:30 बजे एक मोमेडियन मुझे उठाने के लिए आ गया और उसने कहा कि सर मेरे पिताजी को पेट में बहुत दर्द है, तो प्लीज़ आप घर आते हैं क्या। तो मैं भी नया था, मैंने कहा आता हूँ। बैग यानी अपनी एक बस्ती पॉट या हमेशा एक थैली में रहता था, चले गए वहाँ पे। तो एक 70+ का एक बूढ़ा, एकदम क्रूश व्यक्तिमत्व, खांसते खांसते एकदम आहे भर रहा था, पेट के ऊपर हाथ था। तो मैंने कहा क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है। तो पूरे पसीने से लथपथ, वैसे ही विदाउट स्टेथोस्कोप चेस्ट की पूरी कंजेशन सुनाई दे रहा था, पेट में दर्द, पूरे एब्डोमेन में फ्लैचुलेंस था। तो एक ही नाना ने सिखाया था, शूल इज इक्वल टू वात, वात इज इक्वल टू बस्ती। तो उनको पूछा क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, तो बोले शाम से हो रहा है। क्या खाया हिस्ट्री में पूछा तो झुनका भाकर, पिठला जो बोलते वो, और बेल खाई थी, दोनों भी वात प्रकोपक कारण हेतु थे। और चेन स्मोकर थे, बीड़ी पीते थे, तो पूरी चेस्ट कब से भरी हुई थी, तो ऊपर भी कंजेशन, पेट में भी फ्लैचुलेंस, तो डिस्ट्रेस तो आना ही, पल्स सीवियर टैकीकार्डिया था। तो अभी उस समय मैंने ये सोचा कि तेल का बस्ती दे देते हैं। तो उनको पूछा तेल है क्या, तो उनका ही तिल जो मीठा तेल था वो कुनकुना करके सिरिंज से उनको दे दिया। 2-3 शंकवटी जो थी वो दे दी, कुनकुने पानी पिला के मैं घर आ गया। तो रात भर तो मैं नहीं सो पाया, क्योंकि मोमेडियन है, कुछ होता है तो क्या होगा। और दूसरे दिन फिर दवाखाने क्लिनिक जाते जाते उनके घर पे गया, तो ये बाबा आराम से वो खटिया पे बैठ के बीड़ी फूंक रहे थे, यानी वो रात भर सो गए लेकिन अपनी नींद गई। तो उनको जाने के बाद पूछा चाचा जी कैसे लग रहा है, बोला बेटा एकदम अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरे कपड़े गंदे कर दिए तूने। मैंने कहा क्या किया, बोले क्या तूने रात को तेल छोड़ा, वो पूरा बिस्तर गीला हो गया। यानी तेल से फ्लैचुलेंस, तेल बाहर निकलता है तो वायु के साथ साथ में तेल भी निकला था। यानी मेरी जिंदगी की पहली इमरजेंसी, अभी उसको इमरजेंसी ये बोलेंगे कि एज उनका रात का अवसर, कास्ट प्लस पूरा पसीना, टैकीकार्डिया, सीवियर एब्डोमेन पेन, चेस्ट कंजेशन, तो ये तो इमरजेंसी हो सकती है। इमरजेंसी हम उसी को बोल सकते हैं कि जहाँ सब उपाय थक जाते हैं, पेशेंट लाइफ सेविंग ड्रग पे रखा जाता है, वेंटी पे रखा जाता है, तो उसको हम इमरजेंसी कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि सर्जरी भी हम आयुर्वेद से टाल सकते हैं। ये भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज का एक यूपी का लड़का था, तो कोपरगांव के इंजीनियरिंग कॉलेज में था, और एक दिन दोपहर में 2-2:30 बजे एंटी चेम्बर से वो डायरेक्ट मेरे कंसल्टिंग के गेट में खड़ा रहा और कहा कि सर प्लीज़ मुझे इमरजेंसी, आप जल्दी मुझे ट्रीट करो। तो एक तो एंटी चेम्बर से अंदर घुसा, वो गुस्सा था, तो मैंने कहा था अंदर बैठो, एंटी चेम्बर में बैठो। लेकिन मिनट में वो वहाँ पे खड़े होके पेट पकड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था। तो मैंने जाके पूछा क्या हुआ है,
तो उसने कहा सर मुझे रिकरेंट रिनल कोलिक होता है। मैंने कहा कितनी बार हुआ? बोले 2 बार हुआ, उसमें से 1 बार अपने आप गया, सेकंड टाइम सर्जरी करनी पड़ी और अब फिर से मुझे था, लेकिन वो शायद पेनिस में अटक गया, मेरी यूरिन ही अटक गई है, मैं पेशाब भी नहीं कर पा रहा हूँ और बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा अरे यूरिन रिटेंशन अभी स्टोन से हुआ है, तो इसके लिए बस्ती करते हैं। तो पहले उसको वहीं पे एंटी चेम्बर में उसको मात्रा बस्ती दे दिया और मैंने कहा आप जाके बाथरूम में आँख बंद करके धीरे से मसल रिलैक्स करके पेशाब की कोशिश कर। और फिर से आके वो पेशेंट को चेक कर रहा था, फिर से वो 5 मिनट में अंदर से कंसल्टिंग में आया, सर कुछ नहीं हो रहा, प्लीज़ आप लगा तो ऑपरेशन कर दो। मैंने कहा मैं सर्जन थोड़ा ऑपरेशन करने के लिए, तो फिर से रिक्वेस्ट करने लगा। मैंने कहा ठीक है एक बार फिर कोशिश करो, तब तक मैं सर्जन से बात करता हूँ। तो मैंने लोकल एक सर्जन थे उनको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा पेशेंट है, तो बोले उसको भेज दो, पहले उसको कैथेटर से ब्लैडर में पुश करना पड़ेगा, फिर कैथेटर की यूरिन निकालनी पड़ेगी और फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ बोलता हूँ। तो तब तक वो दौड़ते दौड़ते बाहर आ गया, सर निकल गया निकल गया निकल गया। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले निकल गया स्टोन, मेरी पेशाब भी हो गई। तो स्टोन भी उसने लाकर साथ में लेकर आया, 7-8 mm का होगा। तो उस समय मैंने ये सोचा कि श्रद्धा और सबूरी, यदि मैं उस समय 5-10 मिनट और सबूरी नहीं करता और उसे भेज देता तो शायद सर्जन का काम हो गया होता वहाँ पे। लेकिन उस 5 मिनट में मैं फ़ोन करने तक भी वो स्टोन वहाँ से निकल गया था। तो इस प्रकार से ये इमरजेंसी भी हम आयुर्वेद के एक मात्रा बस्ती से हमने अवॉइड की थी। ये भी एक यूपी का एक भैया था, भैया ने एक क्लास 1 ऑफिसर था जो कि शिरडी साई संस्थान में आया था और उसकी एकलौती बीबी थी कि जिसको उसे सेवियर एब्डोमेन पेन दोपहर के दिन आ गया 1-2 बजे, सर बीवी को एब्डोमेन पेन। मैंने कहा कब से हो रहा है? बोले वो सर आदत सी हो गई, अभी जब से शादी की तब से मैं यही कर रहा हूँ, एक डॉक्टर के पास जाता हूँ दिखाता हूँ। और उस समय इतने कोई सोनोग्राफी वगैरह नहीं थी। गया तो उसकी बीवी लिटरली आहे भर रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो थोड़ा सा मुझे एबनॉर्मल बिहेवियर लगा। मैंने कहा यार ये साइको केस दिखती है। तो उसने कहा कि नहीं सर उसको सही में दर्द होता है, हम कई बार जाते हैं, उसको इंजेक्शन देना पड़ता है, आधे 1 घंटे के बाद में कई होता है, लेकिन 2-3 दिन काफ़ी होता है। तो उसको भी पेट में देखा, वो फ्लैचुलेंस था, हिस्ट्री ले ली, तो बोले 3-3 4-4 दिन नहीं जाती है सर ये पॉटी को कभी। तो वो एक कारण था। मैंने कहा उसको बस्ती देना पड़ेगा। तो बोले सर दे दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप जेंट से फिर भी दे दो बस्ती। तो काढ़ा तो था ही स्कूटर में, काढ़ा वगैरह नीरो बस्ती दे दिया। और मैंने कहा शाम को 4 बजे क्लिनिक आ जाओ, क्या होता है बताओ। मैं चला गया और 4 बजे वो दोनों मियाँ बीवी आ गए, वो मेकअप करके आ गए, मैंने पहचाना नहीं उसको तब। हाँ। तो उसने कहा कि सर आपके वो पंप ने कमाल कर दिया, उसका 10 मिनट में दर्द बंद हो गया, आके वो सो गई, अब फ्रेश होके हम वापस आपको मिलने आ गए। तो मैंने कहा फिर कॉन्स्टिपेशन ये उसका कारण था। तो उसको फिर मात्रा बस्ती घर पे लेने के लिए दे दिया, बीच में एक बार बोला कि फिर से एक बार क्लिनिक में नीरो बस्ती करवा लिया और सिंपल विरेचक गंधर्व हरेते की चूर्ण दे दिया, शंखवटी दे दी, बस ज़रूरत पड़ी तो लेते जाओ। आज भी वो यूपी में कहीं तो भी है, यानी ये केस 93-94 की होगी। आज भी उसके बाद में उस समय जो फीस दी मुझे बस्ती के 15 रुपये और 5 रुपये 10 रुपये विजिट के, उसी फीस में आज भी फ्री कंसल्टेशन लेता है। कभी भी कुछ भी होता है, कई डॉक्टर से नहीं हुआ क्या फ़ोन करता है सर मैं राज सिंह, तो मैंने कहा बोलो, तो सर ऐसे ऐसे एक या डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला है वो बोला है, तो आयुर्वेद से क्या होता है, सिर्फ पूछता है, आता कभी नहीं। हाँ। तो इस प्रकार से हम ऐसे भी इमरजेंसी आयुर्वेद से ट्रीट कर सकते हैं। बस्ती तो ये हमारे गुरुजी नाना जोशी हमेशा कहते थे कि बस्ती द्यावा बस्ती घ्यावा बस्ती जीवीचा विसावा। तो मैं तो बंजारा हूँ, तो मेरे डिक्की में ये काढ़ा और ये पॉट हमेशा रहता था। यानी हमने टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, इसलिए घर घर जाके लोगों के घर घर जाके बस्ती दी है। जिनके घर में वो भी सुविधा नहीं है, तो हमने लॉज वाले को पटाया था, मैनेजर को। तो मैनेजर को कहते थे हम आएंगे उसको बस्ती देंगे, तो 10 रुपये फीस में 5 रुपये वो लेता था। यानी मेरा पेशेंट, मेरी एनर्जी, मेरा मेडिसिन और मुझे मिलते थे 5 रुपये और मैनेजर को मिलते थे बैठे बैठे 5 रुपये। तो ये उस समय हम करते थे। तो ये करते 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 यहाँ तक आ गए। लोगों को सिर्फ कार्निवल BMW गाड़ी दिखती है, लेकिन उसके पीछे क्या पापड़ पेल क्या
बेले है ये पता नहीं है। चमत्कार को ही नमस्कार होता है। ऐसे रोजाना 2-3 अनुभव तो हम हमारे प्रैक्टिस में हमेशा देखते हैं। कोई असाध्य रुग्ण या एक्यूट केस वाली पेशेंट जब अल्प समय में मामूली चीज ट्रीटमेंट से ठीक होती है तो वो पेशेंट या उसके रिश्तेदार पाँव छूते हैं तो आयुर्वेद के प्रति बड़ा गर्व महसूस होता है, श्रद्धा और बढ़ती है। कोरोना की यदि हम याद करते हैं तो आज भी रोमटे खड़े होते हैं। तो ये नवंबर 21 की केस है। एक महिला का मुझे फ़ोन आया और वो रोते रोते कहने लगी, डॉक्टर प्लीज़ मुझे बचाओ। उस समय कोरोना का माहौल काफ़ी पीक लेवल पे था, तो मुझे लगा शायद इसको या इसके घर वाले में किसी को कोरोना हुआ होगा, इसलिए फ़ोन किया, बोला होगा। तो उसने, मैंने आगे क्या होता है ये पूछो, तो उसने कहा सर मैं येवला में रहती हूँ, नासिक येवला, तो मैं मेरी माँ को, सासू माँ को किडनी फेलियर के लिए आपके पास लेकर आती हूँ। उज्जैन मेरा मायका है, तो मैं दिवाली के लिए यहाँ उज्जैन आई थी। तो उसके बाद में 20 दिन पहले, 22 दिन पहले मेरे बेटी को, नहीं 20 दिन हो गए, मेरे बेटी को यहाँ पे एक अस्पताल में भर्ती किया हुआ है, वो बेहोश है और मृत्युशैया पे जीवन से लड़ा दे रही है, तो कुछ भी करो आप मेरी बेटी को बचाओ। विस्तार से पूछने पे पता चला कि 22 दिन पहले वो रात को होटल में खाना खाने चले गया और दूसरे दिन सुबह उस बेटी को अतिसार हुआ और गले में सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो उन लोगों ने सोचा शायद कोविड होगा, तो उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और दोपहर तक उसके दोनों हाथ पाँव की पावर ये काफ़ी वीक हो गई, चली गई। सब इन्वेस्टिगेशन के बाद में शाम को डॉक्टर ने कहा कि इसको GBS है, मोटर पॉलीन्यूरोपैथी ऑफ ऑल 4 लिम्स, ये डायग्नोसिस उसका हुआ था मसल इंडक्शन में, और GBS यानी गुलेन-बरी सिंड्रोम। और डॉक्टर ने उस समय कहा कि इसको एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, तो इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन देने पड़ेंगे, 9 इंजेक्शन का कोर्स रहेगा, उसके बाद में उसको फायदा हो सकता है। लेकिन तब से इंजेक्शन चल रहे, दिन ब दिन उसकी परिस्थिति खराब होती गई। अब तो बेहोश है, RT ट्यूब डाली हुई है, कैथेटर डाला हुआ है, हम रोज महाकाल की बाबा की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब 9 इंजेक्शन के बजाय 26 इंजेक्शन हो गए, फिर भी बेटी आज भी बेहोश है। और डॉक्टर ने जब चिंता व्यक्त की तो मुझे याद आया कि आयुर्वेद कुछ कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार यदि हम सोचते हैं तो अतिसार पहले होता है और अतिसार से वात प्रकोप से हस्तगत और पादगत स्नायु में दौर्बल्य, ये उसका कारण होता है। 1000 लोगों में एक में ये होता है, ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी ये उसका वायरस होता है और इसमें ट्रीटमेंट भी जो होती है गामा ग्लोबुलिन होती है। तो जब उसने ये सब कहा और डॉक्टर ने जब चिंता व्यक्त की तो मैंने सोचा कि पाचन संस्था को बल देकर वात का शमन करना ये अपना चिकित्सा सूत्र होना चाहिए। तो 22वां दिन था, मैंने कहा दवा चालू कर सकते हैं। तो उसने कहा मेरे एक रिश्तेदार कोपरगांव में है, वो आएंगे, आप उनको दवा दे दो। RT ट्यूब थी तो ज़्यादा कुछ देने का सवाल नहीं था, तो सिंपल योगेंद्र रस 1 ग्राम, बृहत्वाद चिंतामणि 1 ग्राम, सहस्त्रपुटी अबरक 1 ग्राम और गिलोय सत्व 10 ग्राम, इसकी 30 पुड़ी बना के उनको दे दी। कैप्सूल नीरो ब्रेक करके वही इसी में मिला दो, विष तेंदुकोटी और मांसेदी कषाय, ये सब RT ट्यूब से डाल दो और 50 या 100 ml का अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती उनको देने के लिए बोला। रात को 11 साढ़े 11 बजे वो उज्जैन पहुंचा, तुरंत उन्होंने एक डोज दे दिया, रात को वहीं पे ICU में बस्ती भी दे दिया। अभी डॉक्टर लोग जब पेट भर जाता है, कुछ नहीं रहता है, तो सब अलाउ करते हैं, तो बस्ती दे दिया। और दूसरे दिन हाउ आयुर्वेदा इज फास्ट, आयुर्वेदा कितना फास्ट होता है इसका प्रत्यंतर दूसरे दिन ही आ गया। सुबह का डोज जब 9 बजे हुआ तो साधारण 11:30-12 बजे उसकी मूवमेंट बढ़ गई और 12:30-1 बजे वो होश में आ गई। यानी 22-23 दिन से जो लड़की मृत्युशैया पे थी वो सिर्फ 2 डोज के बाद में उसे होश आया था। ताली तो बनती है यार। फिर उसने माँ को कहा मुझे अच्छा लगता है, डॉक्टर भी खुश हो गए। दूसरे दिन फिर उन्होंने वेंटिलेटर निकाल के ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर लिया, हाथ पाँव में उसकी मूवमेंट शुरू हो गई। फिर तीसरे चौथे दिन कंपन स्थिति में वो बैठने लगी, कंपन स्थिति में वो खड़े होने लगी। और ऐसे करते करते 29वें दिन IPD के और आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के 7वें दिन
कंपन स्थिति में पकड़कर उसे डिस्चार्ज दे दिया गया। यानी मृत्युशैया पे लड़ने वाली वो लड़की मात्र 7 दिन के आयुर्वेद चिकित्सा से आज वापस सुस्थिति में घर जा रही थी। तो उस डॉक्टर ने जो था अभी फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, वो खड़े थे, उसने कहा कि बेटी ये अब तुझे 1-2 साल लगेंगे पूर्ण ठीक होने में, तो तू ठीक हो जाएगी। तो उसकी माँ को बड़ा गुस्सा था उस समय, वो बोली बिल्कुल नहीं, चमत्कार हो जाएगा, मेरी बेटी तुरंत ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर बोला ऐसे चमत्कार वगैरह कुछ नहीं रहता है, तो कुछ नहीं बोली। बाद में आ गई घर पे, और जब यानी नवंबर 21 की बात है, और उसके बाद में उनका कोई कांटेक्ट मुझे नहीं हुआ। जब डायरेक्ट को आई अप्रैल में मेरे पास, एंटी चैम्बर में एक लड़की बैठी वहाँ पे, उसको पकड़ के बिठाया वहाँ पे, इतना मैंने कंसल्टिंग से देखा। और फिर जब नेक्स्ट पेशेंट की बेल थी, तब वो डायरेक्ट उसकी माँ अंदर आके हाथ जोड़ के रोने लगी। तो उसको तो मैं पहचानता, मैंने कहा क्या हुआ? बोले हरिप्रिया को लेके आ रहे। तो मैंने कहा लाओ इधर। तो उसको सोफा से उठ नहीं पा रही थी, उसको दोनों हाथ से खींचकर उन्होंने उठाया, और वो फिर लंगड़ाते लंगड़ाते अंदर आ गए। और फिर वो रोने लगी। एक बार रोने का कार्यक्रम हुआ, मेरी बेटी आज जो भी है आपके कारण है, आयुर्वेद के कारण है, नहीं तो मेरी बेटी तो उस समय गई थी, हमने तो आशा छोड़ दी थी, सब बोलने लगी। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा उसके बाद में अप्रैल हो गया, यानी 5 महीने तुमने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया, 5 महीने में तुम दोबारा क्यों नहीं आए? क्योंकि थोड़ा गुस्सा अपना भी ईगो हर्ट होता है, और बाद में इन्फॉर्म भी नहीं किया इन लोगों ने। तो रोते रोते फिर बोलने लगे सर पता है आपको 26 इंजेक्शन का खर्चा कितना आता होगा? क्योंकि 18,000 को एक इंजेक्शन होता है। और बोले पूरा पैसा निकल गया, तो फिर फीस तो आपको देने के लिए तो चाहिए ना। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ा होता है, आयुर्वेद वाले बड़े दिल वाले होते हैं। तो वो फिर बोले, और फिर मैंने कहा आप बोलो। तो बोले सर प्रॉब्लम ये है कि नवंबर से उसको आप तक उसको पीरियड ही नहीं आया। और सबसे मेन चेंज जो था वो, ये देखो एक 14 साल की लड़की है, उसको 26 गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन देने के कारण वो 30 साल की महिला जैसे दिखने लगी थी। हाइट, वेट, सेक्सुअल कैरेक्टर सब उसके बढ़ चुके थे, और उस दिन से आज तक पीरियड नहीं आया था। और उसको वीकनेस तो था, नीचे से ऊपर वो उठ नहीं पाती थी। तो मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 दिन का योग बस्तिक्रम कर लेते, स्नेह स्वेदन कर लेते, सब ठीक हो जाएगा। और फिर से उसको वही दवा रिपीट कर दी। तो तीसरे दिन बराबर उसको मेंसेस स्टार्ट हो गए, और 5-6 दिन के बाद में, बराबर 15 दिन के बाद में, ये उसका वीडियो है, विदाउट सपोर्ट वो उठ सकते हैं। अच्छा उठना एकदम खुद से। चल हाथ उठा, हाथ ऊपर उठाने में भी प्रॉब्लम था उसको। इसको उठा अच्छे से, ऐसे आगे चल के दिखा एक बार। वेरी गुड। पीछे पीछे पलट के चल, पलट के पूरा, हाँ पूरा पलट ना, टर्न हो, पलट जा। यहाँ आयुर्वेद का स्टूडेंट है, वो सिटिंग कर रहा है। हाँ दोनों पैर पे ताड़ासन भी वो कर सकती थी ना, इतना पावर और इतनी बैलेंसिंग उसमें सिर्फ 5 दिन के योग बस्ती से आई थी। वेरी गुड, बैठ जा। तो अब ये बस्ती के हो गए। अभी एक रक्तमोक्षण क्या कर सकता है? अब ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया आपको सबको पता होगा। कुछ बीमारियां ऐसे होती है कि किसी सेलिब्रिटी को होने के बाद में उस बीमारी के दिन बदल जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो हुआ था, पता है? वो बेचारा 6 महीने घर पे था। अभी 6 महीने का लॉस उसका देखो अभी कितना करोड़ हुआ होगा। यदि आयुर्वेद के पास आता तो 6 मिनट में वो ठीक जाता। वो एक विद्या कर्म अग्नि कर्म कर देते तो तुरंत हाथ ठीक होता है उसका। हम तो कभी पेशेंट को टेनिस एल्बो है तो कुछ नहीं, फोकट में एक दाग लेके निकल जा बोलते हैं। तो वैसे ही ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। अब ये ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया हिट इसलिए हुआ, फेमस इसलिए हुआ कि किसको हुआ है? सलमान खान को अभी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है। वो बेचारा एवरी 6 महीने के बाद में लंदन जाके नर्व ब्लॉक करके आता है। तो इसमें जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसके ऊपर कॉम्प्रेशन आता है या उसमें सूजन आ जाती है, और उसके कारण ये ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया होता है। इसका दर्द इतना सीवियर होता है कि पूछो मत। यानी दर्द यहाँ से टूथ से शुरू होता है। टूथ से शुरू हुआ के पेशेंट सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाता है। डेंटिस्ट बोलता नहीं ये मेरी केस नहीं है, 1-2 दांत निकाल लेता है और फिर बोलता है कि ये मेरी केस नहीं है।
फिर वो फिजिशियन के पास, फिजिशियन भी थोड़ा सा कमा लेता है और फिर बोलता है ये न्यूरो फिजिशियन की केस है, और फिर न्यूरो फिजिशियन, और फिर न्यूरो फिजिशियन एमआरआई वगैरह करके एप्टाइन ट्रिप्टोमर, बस इसके सिवा कोई दवा नहीं है उनके पास, ये चलने दो। कुछ दिन तक ठीक लगता है, उसके बाद में एक बार रेजिस्टेंस आ गया कि फिर दर्द उसका शुरू होता है। दर्द इतना सीवियर होता है कि थ्रॉबिंग पेन्स रहते हैं, बर्निंग पेन्स रहते हैं, कुछ कुछ पेशेंट मुंह भी नहीं खोल सकते, हवा भी फूंकते तो पेशेंट दचक जाता है, जस्ट टैपिंग करते तो भी दचक जाते हैं, इतना सीवियर पेन उसमें होता है। लेकिन एक रक्त मोक्षण से किसी का ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया जा सकता है। ऐसे कम से कम 4 या 5 पेशेंट मैंने देखे कि एक तो 91 का, आज भी स्टिल ही इज फाइन। तो ऐसे चमत्कार होते। अभी एक कोपरगांव के नज़दीक एक छोटा सा गांव है, वहाँ से एक लेडी आई थी, 50 प्लस की होगी, 42, और वो आ गई। तब मैं नासिक हॉस्पिटल में था, तो डॉक्टर विजय मेरा जो असिस्टेंट है उसने उसको ट्रीट किया। उसको 6 सालों से, यानी 8 सालों से ये ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, शुरुआत में ये सब हो गया, फिर एप्टाइन ट्रिप्टोमर ये चालू थे, शुरुआत में ठीक लगा, और पिछले 6 महीने से सीवियर दर्द के कारण वो बेड रिडन थी घर पे। वो मुंह भी नहीं खोल पाती थी, मुंह खोला के दर्द होता था, तो उसके कारण खाने की तो बात अलग थी, वो सिर्फ लिक्विड डाइट पे थी, किसी के साथ फ़ोन पे बात नहीं कर पा रही थी। 6 महीने से किसी भी रिश्तेदार से उसका मोबाइल पे संभाषण नहीं हुआ था। और फिर डॉक्टर विजय ने दवा दी, 6 दिन में उसको थोड़ा ठीक लगा, और 6 दिन के बाद जब वो आई तो टाइप ऑफ पेन, दर्द किस प्रकार का है, थ्रॉबिंग पेन होना, बर्निंग पेन होना, पेशेंट कहता है कि ठस ठस होती है, जलन होती है, अंगार होती है, कुछ पेशेंट ही बोलते कि ऐसा लगता है कि वहाँ से नस काट दो। तो ये सब रक्तमोक्षण की अवस्था के लक्षण होते हैं। तो वो सब लक्षण थे, तो मैंने कहा जुगुलर रक्तमोक्षण करते, तो जुगुलर रक्तमोक्षण कर लिया। और गरीब थी काफ़ी, तो इसलिए 1 ग्राम बृहत्वा चिंतामणि 10 ग्राम गिलोय सत्व में मिक्स करके 30 पूड़ी बना के सुबह शाम लेने के लिए बोला। कैशर गुगुल कामदुदा पथ्यादिवटी कुमकुम घृत नस्तर नासा में डालने के लिए दे दिया, और रक्त पित्तग्नियोग उसको दे दिया, और 6 दिन के बाद में बुलाया। आश्चर्य लगेगा, 6 दिन के बाद जब वो आई तो आने के बाद उसके हस्बैंड एक ही बोले कि सर 6 दिन ये सिर्फ मोबाइल पे बोल रही है। तो मैंने कहा यार नहीं, तो बोले सर, उसने कहा कि सर जैसे खून निकला मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, और घर जाते जाते मैं पूरी ठीक हो गई। अब मैं चबा के भी खा सकती हूँ, हार्ड चीज़ें भी मैं चबा सकती हूँ। इतना ही नहीं, मैंने धूप में 3 दिन खेती में काम भी किया, फिर भी मुझे तकलीफ नहीं हुई। यानी उसका ये ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का दर्द सिर्फ एक रक्तमोक्षण से इंस्टेंट गया था। अब कुछ हम बोलेंगे कि ये टेम्पररी इफेक्ट होगा। अगस्त में आई थी वो, तो अक्टूबर तक वो कोपरगांव में ट्रीटमेंट के लिए आए। उसके बाद में गरीब थी, इसलिए वो अप्रैल तक शिरडी हॉस्पिटल में आ गए। वहाँ पे हम दवा देते रहे, फिर जो जो लक्षण है उसके देते रहे, कभी सिर की कंप्लेंट नहीं थी उसकी। और अप्रैल के बाद में, अप्रैल 23 से लेकर अभी ये जून या जुलाई में शायद आई थी, तब दूसरे पेशेंट को लेकर आ गए। तब उसने कहा कि थोड़ा थोड़ा सर अंगार हो रही है, तो फिर एक बार रक्तमोक्षण हमने कर लिया, दोबारा वापस नहीं आई। तो यानी एक रक्तमोक्षण 2-2, 3-3 सालों तक इफेक्ट दे सकता है, ये इससे सिद्ध होता है। तो यदि किसी की सलमान खान से पहचान होगी तो जाके उसे बताओ कि एक बार रक्तमोक्षण कर लो। वैसे उत्तर बस्ती रक्तमोक्षण कई बार मैंने एक केस बोली इंजीनियर। अभी कल ही नासिक में एक आए थे, डॉक्टर थे, एमडी फिजिशियन थे, माइग्रेन के लिए आए थे, तो बोले सही में फ़र्क होता है क्या? मैंने उनको ये कल ही केस बताई थी। एक 2016 में कोपरगांव इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल है कापगते सर, आज भी वो प्रिंसिपल है, काफ़ी नामांकित कॉलेज है वो। तो उनकी बीवी मेरे पेशेंट थी, और ये एंटी आयुर्वेदा थे। ये हमेशा गाड़ी में नीचे बैठते थे, कभी ऊपर नहीं आते थे। और एक रिनाउन कॉलेज की भी प्रिंसिपल की बीवी, इसलिए मैंने भी उससे कभी फीस नहीं ली। हमें आदत है ना दान करने की, तो हमने पैसे नहीं लिए उनसे। तो एक दिन 2016 में शाम के समय उनकी बीवी दोनों कंधों को उनको पकड़ के, उनके मिस्टर जो थे पूरा सर ऐसे कस के पकड़ा था उन्होंने, और ये अंदर लेके आए। तो मैंने उनको देखा तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ सर को? तो बोले सर इनको अपना माइग्रेन की शिकायत। मैंने कहा कब से? बोले सर 6 दिन हो गए। तो मैंने कहा 6 दिन क्या किया? तो उसने मेरे तरफ देखा, सर आपको पता है ना। तो 6 दिन से ट्रामाडोल, फोर्टिन, फेनर्गन सब ले रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर आज वही बोले कि तू जैसे बोलेगी वैसे करेंगे। तो मैंने कहा ये रक्तमोक्षण करना पड़ेगा। उसने कहा सर मैं मीठा खा के लेकर आई हो, क्योंकि उनको पता है कि पहले खाना पड़ता है। तो पोजीशन दे के रक्तमोक्षण जुगुलर में प्रिक करके वापस कंसल्टिंग में आके बैठ गया। और
पेशेंट देख रहा था, तो 15 मिनट के बाद ये महाशय आराम से अंदर से हाथ पोंछते पोंछते कंसल्टिंग में आ गए। तो मैंने पूछा सर कैसे लग रहा है, तो उन्होंने कहा सर आयुर्वेद इतना इफेक्टिव होता है ये ज़िंदगी में पहली बार मैं देख रहा हूँ। मेरा दर्द 100% फिनिश, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है सर मुझे। तो जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको उन्होंने सैल्यूट किया और कहा कि यू आर द लकीएस्ट पर्सन कि आप आयुर्वेद में आए हो। तो उस समय फिर उन्होंने सर फीस कितनी हुई, मैंने कहा आपको पता नहीं कि आपकी बीवी के भी मैं पैसे नहीं लेता कभी, और ये तो जितने एंटी आयुर्वेदा होते हैं ना उनको जलाने का मौका मैं कभी नहीं छोड़ता। तो तुरंत मैंने उनको कहा कि सर ऐसे मामूली चीज़ों के तो हम बिल्कुल पैसे नहीं लेते, ये माइग्रेन हमारे लिए मामूली चीज़ है, तो पैसे नहीं लिए मैंने उनसे। फिर मैंने भी सोचा अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी, 1 रुपए की नहीं डल, छोड़ दो। लेकिन ये बाद में कैश होता है। तो ये जो प्रिंसिपल गए उसके बाद में 2020 में मेरी स्टाफ नर्स थी, मोमेडिन थी, विडो थी वो, तो उसका बेटा 10वीं में अच्छे मार्क्स से पास हो गया। फिर वो मुझे बोली कि सर मेरे बेटे को रिसेप्शन पे लगा लो। मैंने कहा उसे इतने अच्छे मार्क पड़े तो उसको आगे पढ़ाओ। तो बोले सर आपको पता है मेरे घर में कोई नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकती ज़्यादा, तो इसको लगा लो। तो उसको मैंने बेटे से पूछा, बोले सर मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन माँ नहीं बोलती है। तब मुझे याद आ गया चलो फीस वसूल करने का समय आ गया। तो मैंने वो प्रिंसिपल को फ़ोन लगाया फिर कि सर ऐसा ऐसा लड़का है, काफ़ी होनहार है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हम स्कॉलरशिप में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसको भेज दो। मैंने उसको भेज दिया। वो जाकर शाम को आके मिला। मैंने कहा क्या हुआ, बोले उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप हो जाएगी लेकिन शुरुआत में 25,000 रुपये भरने पड़ेंगे। मुझे गुस्सा आया थोड़ा, मैंने कहा यार हो जाएगा बोलता, और 25,000 मांग रहा है। तो फिर से मैंने गुस्से में फ़ोन लगाया। तो बोले सर क्या है शुरुआत में, वो बाद में रिफंड मिल जाएंगे, बोले शुरुआत में भरने पड़ेंगे, मैनेजमेंट से मैं बोल लूँगा। तो मैंने कहा उसकी 2500 देने की आयपत नहीं है, तुम 25,000 बोल रहे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 25,000 मेरे तरफ से भर देता हूँ, मैंने उसका एजुकेशन किया ऐसे मैं समझूंगा। तो तुरंत बोले नहीं नहीं सर एक मिनट वेट उसे वापस भेज दो, मैं देखता हूँ क्या करना है। और फिर उन्होंने क्या किया पता नहीं, उसको एडमिशन दे दिया। थ्रू आउट करियर में वो रैंकिंग में आ गया, और 2024 में एक कैंपस इंटरव्यू में उसका पुणे में एक कंपनी में सिलेक्शन हो गया। 38,000 रुपीज़ सैलरी से उसको जॉब मिल गया। यानी एक गरीब लड़के की जिंदगी बनाने का काम इस रक्तमोक्षण के एक निडल ने किया था। आगे फिर आज उसको 78,000 सैलरी आज। तो वही टीचर तो वो कल फिजिशियन बोले कि फिर ये इफेक्ट कब तक टिका। मैंने कहा आज तक टिका है। और इतना ही नहीं, 22 में वो आए थे शाम के समय, और जब आने के बाद मैंने बच्चों को कहा कि इनके कारण एक बेटी की ज़िंदगी हुई है। तो वो बोले कैसे क्या। तो मैंने जब ये बोला तो खड़े हुए उन्होंने हाथ जोड़ के कहा सर मेरे कारण नहीं हुआ है, ये आयुर्वेद के रक्तमोक्षण के कारण हुआ है। तो उन्होंने उस समय फिर बोला कि सर मुझे तब से आज तक मैं बीमारी नहीं हुआ। कोविड में मेरे कॉलेज के कई स्टाफ को कोविड हुआ, उनकी बीवियाँ दूर थी लेकिन मैंने उनकी केयर की, मुझे कोविड भी नहीं हुआ, और मुझे आज तक एक भी गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़े से रैश आ गए तो मैंने इसको कहा शायद रक्तमोक्षण से जाते होंगे तो रक्तमोक्षण करके आएंगे, और वो अर्टिकेरिया के लिए वापस आए थे, रक्तमोक्षण करके गए, दोबारा अब तक नहीं आए। यानी इतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी उसका होता है। ये उत्तर बस्ती के भी उतने ही मिराकुलस रिजल्ट्स होते हैं। न्यूरोजेनिक ब्लैडर है या यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है या अजोस्पर्मिया है, सब में रिजल्ट्स हम देखते रहते हैं। तो ये एक 68 ईयर्स के औरंगाबाद के एक प्रोफेसर थे, और जब उनकी बीवी उनको पकड़ कर लेकर आ गई तो यूरो बैग कमर पे लटकी थी, कमर में बेल्ट लगाया हुआ था, और काफ़ी अजागर स्थिति में वो आए। क्या होता है पूछने पे बात नहीं करना, एकदम शांत। तो उनकी बीवी बोले कि सर इनकी पूरी ज़िंदगी सूट बूट में गई है, और एक 2 साल पहले की बात है, बाथरूम में फिसलने का कारण हो गया, गिर गए, कमर पे मार लगा और उनकी पेशाब अटक गई। फिर डॉक्टर ने नली डाल के निकाली। उसके बाद में बार बार वो बोले कि नली डालनी पड़ेगी। 6 महीने तक घर पे हमने की, लेकिन उनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने लगा। फिर डॉक्टर ने कहा कि नली अभी परमानेंट रहेगी, तो कैथेटर डाल दिया। और तब से ये डिप्रेशन में, किसी के साथ बात नहीं करते,
कहीं बाहर नहीं जाते। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहले कटी बस्ती करवाया, फिर शिरोधारा करवाई, और उनके मिसेस को घर पे कटी बस्ती कैसे करना है समझा दिया। और उनके साथ एक केयर टेकर था देशपांडे करके, तो मैंने उसको कहा कि ये फॉलिज कैथेटर जो है वो जब बदलना है तब मुझे फ़ोन करना, क्या करना है मैं बताऊंगा। तो बोले सर बताओ, मैं करूंगा। तो उसको तेल दे दिया चंदन वाला सर्चर का हमने 100 ml, वो स्टरलाइज कैसे करना है ये बोला। और जब भी कैथेटर निकलना है तो पहले 20 cc डिस्पोजेबल सिरिंज से तेल को ब्लैडर में पुश करना है और फिर कैथेटर निकाल लेना है। और जब तक यूरिन सेंसेशन आता है नहीं आता है देखना है, और फिर कैथेटर डालना ही नहीं डालना मुझे 2 घंटे के बाद फ़ोन पे पूछ लेना। 2 घंटे के बाद उसने उस समय किया, 2 घंटे के बाद फ़ोन करके पूछा कि किया है सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा सेंसेशन हो रहा है, क्या करूँ। मैंने कहा तकलीफ नहीं ना ज़्यादा, तो नहीं है। मैंने कहा कंटिन्यू कर। और फिर 3-4 बजे जोर लगा के पेशाब की थोड़ी सी हो गई, तो मैंने कहा बस्ती रात को चालू रखो, तिक्तक्षीर बस्ती, देखते क्या होता है। और धीरे धीरे पेशाब होने लगे। और जब 15 दिन उपरांत वो आए तो पहले रूप में आए, सूट बूट पहन के, टाई पहन के। और आने के बाद उन्होंने एक ही कहा कि सर आई एम रियली ग्रेटफुल टू आयुर्वेदा कि मैं पहले जैसे बन गया। यानी उनको जो कॉम्प्लेक्स था, वो यूरो बैग लगा के कहीं भी जाना है, ये उनके निकल गया था। बैक एक को तो उन्होंने फिर ओवरकम कर दिया, क्योंकि ये डिप्रेशन चलने के बाद वो बोले बैक एक तो अब जाएगा पूरा, और वो जाता ही है बाद में। तो इस प्रकार से वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर की इमरजेंसी सिर्फ एक उत्तर बस्ती से जाती हुए मैंने देखी है। ये भी एक यमएस डॉक्टर की भतीजी थी, उसको भी माइग्रेन था, गिर गई। गिरने के बाद में उठा के लेकर आया हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर जब आया और वो बेटी, तब तक हमने रक्तमोक्षण कर लिया था, वो बात कर रही, तो आने के बाद उसने मुझे आकर अंदर आके पूछा वो सर्जन ने कि आपने कौन सा इंजेक्शन दिया। तो मैंने कहा इंजेक्शन हम लोग कहाँ से इंजेक्शन देते, नहीं बोले उसको देना ही पड़ता है 14 पेनर्गन, और वो आधे घंटे के बाद सेटल होती है। इतनी कम समय में कैसे क्या सेटल हो गए। मैंने कहा हमारे पास एक आयुर्वेदिक इंजेक्शन है जिससे हम कुछ अंदर नहीं डालते, निकाल लेते, खून निकाल लेते। तब उनको जब समझाया तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए, भाई एक्चुअली वर्क कैसे होता है। अब सिंपल नस्य चिकित्सा है। नस्य चिकित्सा भी किसी की जान बचा सकती है। बुक में शायद पढ़ी होगी एक केस आपने। अभी ये भी मेरा पुराना दवाखाना एकदम छोटा था, उसके पीछे एक मेडिकल वाले थे, उनकी 3 मेडिकल कोपरगांव में थे, जवाहर मेडिकल, शाह मेडिकल, नितिन मेडिकल, ऐसे। तो वो मेरे दवाखाने के सामने से ही उसकी दुकान में जाता था, और मेरे सामने एक MBBS जनरल प्रैक्टिशनर थे। तो ये जब भी मैं कभी वहाँ खड़ा रहता था, देखता था, तो एक अलग नज़रिया से मेरे तरफ देखते देखते ऐसे खुन्नस देते देते जाता था हमेशा। यानी आयुर्वेद वाले की एकदम किस झाड़ की पत्तियाँ, ऐसा वो हमेशा देखता था मुझे। और एक दिन क्या हुआ कि शाम को 5:30-6 बजे मैं अपने बैठा था, कोई पेशेंट नहीं था, बैठा था, तो उसको वो और उसकी बीवी उसके 2-2.5 साल के बेटे को पकड़ कर लेकर आ गया और डायरेक्ट टेबल पे रख के, सर प्लीज़ मेरे बेटे को बचाओ, बेटे को बचाओ। तो मैं भी एकदम शॉक होकर उठ गया, अरे ये पेशेंट तो सामने वाले डॉक्टर का मेरे पास कैसे आ गया। तो मैंने कहा क्या हुआ, बोले उसने ब्रेथ होल्ड कर लिया, उसे सॉबिंग बोलते हैं, ब्रेथ होल्डिंग। तो कुछ बच्चे को, जिद्दी बच्चे जो होते हैं उनमें हैबिट होती है, तो उस समय ये क्या करते, उल्टे करते और पीठ को थपथपाते हैं, तो वो सांस शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा उल्टा करो, तो नहीं, बोले सर हमने कर लिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा फिर सामने डॉक्टर हो गए, उनके पास जाओ। तो बोले वो नहीं, इसलिए तो ये आए, अब क्या करना है। तो तुरंत मुझे वेखंड का याद आ गई। मैंने अंदर जाके वेखंड लाई और उसके नाक में ठोस दिया ऐसे कंप्लीट। ऑलरेडी वो साइनोसिस उसको होने लगा था, आँख खुली थी, एकदम अनकॉन्शियस टाइप में। जैसे वेखंड लगा, थोड़ा सा सांस के साथ में थोड़ा सा अंदर गया होगा, तो उसकी पलकें झपकी, फिर से जोर से करके मैंने नाक दबाया और एकदम छोड़ दिया। और जैसे छोड़ा नाक, तो एक थोड़ी सी सांस जो अंदर गई उसमें से वो चला गया और एकदम छींक आके वो जोर जोर से रोने लगा। और फिर रोने लगा, फिर उन लोगों ने उठा लिया उसको करवट पे, उसको थपथपाया फिर। और तब तक सामने से वो डॉक्टर भी आ गए दौड़ते हुए, और क्या रामदास, क्या इमरजेंसी क्या है। मैंने कहा ऐसा ऐसे हो गया। तो बोले हो गया ना ठीक। मैंने हाँ हो गया ठीक। तो मैंने कहा आप नहीं थे, मेरे पास आ गए, नहीं अच्छा होता, अच्छा हो गया। बोले मैं भी क्या करता उसको, क्योंकि ऑलरेडी साइनोसिस हो चुका था और इसको एनेस्थेसिस्ट के पास ट्यूब की इंट्यूबेशन के लिए भेजना, और तब तक तो शायद ये बचता नहीं फिर, क्योंकि वो वहाँ से आधे किलोमीटर पे थे वो। तो अच्छा हुआ तेरे पास आ गए। फिर ये दोनों मियाँ बीवी रोने लगे
और फिर उसने एक 10-10, 20-20 के नोटों का गड्ढा निकाला उसने। अब ये भी एंटी आयुर्वेदा था। तो सामने रखा, बोले सर आपकी फीस। तो मैंने क्या, हमने क्या किया, सिर्फ एक चूरन नाक को लगा दिया, उससे हो गया। तो इसमें फीस खा लेते हैं, ऐसे मामूली चीज़ों के तो पैसे नहीं लेते हम। फिर वो रोने लगा और धन्यवाद करके चला गया। और उस दिन से आज तक वो कभी भी जाता, मैं खड़ा रहा कि आके पाँव छूता था, सर कैसे चला जाता था, वो नहीं आया। लेकिन उसने कम से कम 40-50 पेशेंट तो आज तक मुझे भेजे, क्योंकि उसके मेडिकल में पेशेंट बार बार रिपीटेशन वाले जाते रहते ट्रीटमेंट। तो फिर बोलता रहे इतने सालों से खा रहा है का, इतने एक बार दिखा दे उनको। और फिर ऐसे पेशेंट अपने पास आने के बाद, आयुर्वेद के पास आने के बाद दोबारा कहीं जाने का तो चांस होता ही नहीं। अब विरेचन चिकित्सा भी 10 मिनट, ओके नो प्रॉब्लम। विरेचन चिकित्सा भी किसी की जान बचा सकता है। ये भी अभी एक साइनाथ हॉस्पिटल में डॉक्टर खुराना, नाम भी बोल देता हूँ, आर्थोपेडिक सर्जन, स्टिल ही इज प्रैक्टिसिंग देयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। 2001 में ये अनकॉन्शियस, बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। तो उनके भाई मेरे पास बीड़ से आए थे। उन्होंने कहा मेरे भाई आर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पे है। और जस्ट 6 महीने पहले उन्होंने कोपरगांव में हॉस्पिटल ओपन किया था। हमें इनविटेशन नहीं था तो हम नहीं गए थे, उनको देखा भी नहीं था कभी। तो बोले ऐसे ऐसे कोमा में चले गए, तो कल पूना शिफ्ट करना है, तो आप देखते क्या। मैंने कहा चलो जाते हैं। तो 7:30 बजे हम उनके हॉस्पिटल में, उसके हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, IV फ्लूइड चल रहा था और उनकी बीवी बाजू में बैठी थी। तो मैंने जाके सब मेरी पहचान करा दी, मैं डॉक्टर वैद्य हुआ ऐसे वैसे, और सब रिपोर्ट देख के सीरम बिलिरुबिन 14.5 था, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन हेपेटाइटिस पॉजिटिव था, विडाल टेस्ट पॉजिटिव थी, और डॉक्टर साहब को ये अनकॉन्शियस स्थिति में थी। तो उसकी बीवी मुझे बोली कि सर इन्होंने, हम सायन हॉस्पिटल में जब थे तब सब वैक्सीनेशन करवाया था, फिर भी इनको हेपेटाइटिस कैसे हुआ। तो मैंने कहा ये प्रश्न मैंने आपको पूछना चाहिए था, क्योंकि आप मॉडर्न के डॉक्टर हो, आपने हेपेटाइटिस के वैक्सीन लिए, तो ये इसका उत्तर तो आपको पता होगा। तो सब मैंने कहा कि कल लेके जाने वाले तो एक चांस आयुर्वेद को दे दो, एक ट्रीटमेंट करते हैं हम। तो बोले करो। तो मैंने इच्छा विधि साथ में लेकर आया था। मैंने कहा IV फ्लूइड चल रहा है, हाइड्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक के बजाय 2 इच्छा विधि क्रश करके सलाइन में मिक्स करके RT ट्यूब से पुश कर दी। और मैंने कहा भी उनको जुलाब हो जाएंगे, कितने होते हैं देखो, और आगे क्या होता है कल तय करेंगे। सुबह 8:30 बजे उसके मिसेस का फ़ोन आता है, रात को 2-3 बजे से आवाज़ से पता चलता है जुलाब हो रहे, लेकिन कितने हो रहे, डायपर लगाए पता नहीं चल रहा है, तो कुछ होगा तो नहीं ना ज़्यादा। मैंने कहा जो होगा अच्छा होगा। फिर भी उसने 11 बजे फिर से बोला कि सर कुछ होगा तो नहीं ना। तो मैंने कहा एक काम करो, आपको डर है तो कुछ दवा देता है। फिर आरोग्यवर्धिनी फलित्रिकादि कषाय और कामदुदा मोती युक्त, तो मैंने कहा थोड़ा ब्लीडिंग हुआ तो वो भी रखते हैं साथ में, और बाकी कुमारी आशा वगैरह वो सब दे दिया। लेकिन शाम को 5:30 बजे उसका फ़ोन आता है और वो कहती कि डॉक्टर साहब होश में आ गए। यानी एक विरेचन चिकित्सा से उनका जो हिपैटिक कोमा बोल सकते हैं हम, उससे वो बाहर आए थे। फिर मैं खुशी से मैं उनको मिलने गया, उनको मेरी पहचान करा दी, मैं डॉक्टर रावड़ हूँ, ऐसे आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूँ, आपको मैंने कल गोली खिलाई थी वगैरह। यानी होश आने के बाद उनको पता चलना चाहिए ना किसने उनको होश में लाया। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो विडाल पॉजिटिव थी, तो मैंने कहा आज कैस्टर ऑयल देते, तो फिर रात को कैस्टर ऑयल दे दिया उनको। दूसरे दिन भी जुलाब हो गया, और बराबर एक 6 दिन के बाद में 12वें दिन का उनको सीरम बिलिरुबिन 14.5 से 3.65 था, 21वें दिन में 1.60 मिलीग्राम था। और तब उनका मुझे फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब मुझे एक अर्जेंट सर्जरी करनी है, यानी उनको पेशेंट की करनी थी, तो क्या मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा यदि वीकनेस नहीं हो, आपको लगता है 2-3 घंटे खड़े रह सकते हो तो कर सकते हो। उन्होंने वो की, और बराबर 1 महीना 10 दिन के बाद मॉर्निंग में उनका मुझे फ़ोन आता है और कहते कि डॉक्टर साहब पार्टी तो बनती है। मैंने कहा क्या हुआ। बोले मेरी हेपेटाइटिस टेस्ट मैंने अभी कर ली है और वो टेस्ट निगेटिव आ गई। तो मैंने कहा शायद रिपोर्ट गलत हुआ होगा, क्योंकि मॉडर्न वाले डॉक्टर ही बोलते कि एक बार टेस्ट पॉजिटिव है वो निगेटिव नहीं होती है। तो मैंने कहा शायद रिपोर्ट गलत होगा, आप दूसरी जगह पे चेक करके दिखाओ। फिर शाम को फ़ोन आता है कि रामदास अब तो पार्टी बनती है। मैंने कहा क्या हुआ। बोले मैंने MD पैथ के पास किया, उसके पास भी निगेटिव आ गया। फिर मैंने बोला पार्टी किसने किसको देनी चाहिए। तो बोले नहीं सर आप कभी भी बोला, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, ऐसा वैसा है। तो मैंने कहा जान नहीं चाहिए, आज सन एंड सन में शिरडी में 5 स्टार होटल है, वहाँ पे IME की CME है, तो वहाँ आगे जाके मेरा नाम नहीं लिया तो भी चलेगा, आगे जाके बोलना कि आयुर्वेद से मेरी हेपेटाइटिस की टेस्ट निगेटिव हो गई। उस समय
50-60 डॉक्टर्स होंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा तालियों की आवाज़ में उस डॉक्टर ने उस समय वहाँ कहा कि आज मैं जो भी आपके सामने हूँ वो आयुर्वेद की बदौलत हूँ, रामदास की वजह से हूँ। मेरा ऐसा ऐसा केस था, लेकिन उनके ट्रीटमेंट के बाद में आज मेरी हेपेटाइटिस की टेस्ट HbS टेस्ट नेगेटिव आ गई। यानी आधुनिक डॉक्टर के उस परिसंवाद में प्राचीन आयुर्वेद का गौरव होना, ये किसी भी वैद्य के लिए ये भी एक ग्लाउकोमा जिसे हम काज बिंदु बोलते हैं, संगमनेर में उसकी मेडिकल एजेंसी है। उसको जाते जाते गन्ने की गाड़ी से टकराया, थोड़ी इंजरी हो गई, फिर ग्लाउकोमा डेवलप हुआ और चेन्नई में उसकी ट्रीटमेंट चल रही। तो बार बार बोलते था सर मैं जाके आया, फिर ये किया वो किया वो किया। मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया उसमें, तेरा जो चल रहा है चलने दो। और एक दिन फिर लास्ट में वो बोला कि सर अब उन्होंने कहा कि जो इंट्राक्यूलर प्रेशर ये 21 से नीचे आ ही नहीं रहा है, और इंग्लैंड के ब्रिटेन के एक डॉक्टर आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उनके अंडर ट्रीटमेंट चल रही है। उन्होंने कहा ये कम होता है तो ये हम एक सर्जरी करेंगे जिससे तुम परमानेंटली ठीक हो सकते हो, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो वो बोले कि तब तक आना नहीं है, अभी दोबारा कोई कर नहीं सकते हैं। तो मैं रात रात तकियों को सर लगा के सोता हूँ, बहुत दर्द होता है, ऐसे होता है। मैंने कहा तेरे उपाय खत्म हो गए तो फिर चल तर्पण कर ले। वो बोले सर करूँ क्या? मैंने कहा कर ले। और तर्पण किया, एक जुगुलर रक्तमोक्षण करके उसको भेज दिया। उसकी बीवी तर्पण करने लगी और बराबर 5-6 दिन के बाद में वो बोला कि सर जैसे जैसे हम तर्पण करते जा रहे हैं वैसे वैसे मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है, मैं अब सुपाइन पोजीशन में सो सकता हूँ। और बाद में 10 दिन के बाद में वो चेन्नई होके आया, और चेन्नई में उस ब्रिटेन के डॉक्टर ने जब चेक किया उसे, तो उसे पर्सनल उसने बुला लिया अंदर और उसको पूछा तूने क्या किया है मुझे बता। तो उसने कहा ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होती है। वो बोले तुम्हारा पूरा खर्चा ब्रिटेन थ्रू आउट खर्चा मैं करूँगा, फ्री में ऑपरेशन ब्रिटेन में मैं करूँगा, सिर्फ तूने जो किया वो मुझे करके दिखाना है आके। और जाते वक्त उसको 5 किलो घी लेके गया होता नेत्र तर्पण का, त्रिफलाग्रुत। और वहाँ जाके उससे उन्होंने कुछ पेशेंट के ऊपर करवाए, वो सब फ्री में उसका ऑपरेशन हो गया। आज वो पूरी तरह से ठीक है और वो डॉक्टर वहाँ पे तर्पण कर रहा है अभी। हाँ। और उसने ये भी कहा कि इन फ्यूचर में कभी भी इंडिया आऊँगा तो आपके डॉक्टर को मिलने जरूर आऊँगा। तो इस प्रकार से ये होता है। शिरोधारा से तो पत्थर मारने वाले पेशेंट भी एक शिरोधारा से ठीक होते मैंने देखे हैं। बाइपोलर सिजोफ्रेनिया, मैनिया, पैनिक मैनिया, साइकोसिस, एंग्जाइटी न्यूरोसिस, पोस्टपार्टम साइकोसिस, इंसोम्निया, सब पेशेंट शिरोधारा से ठीक होते हैं। सिर्फ श्रद्धा चाहिए, पेशेंस चाहिए, पेशेंट का भी और तुम्हारा भी। इस प्रकार से आयुर्वेद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सी इमरजेंसीज हम आयुर्वेद से हैंडल कर सकते हैं। शमन चिकित्सा में सुवर्ण सूतशेखर, लक्ष्मी विलास, सितोपलादी, ये कॉम्बिनेशन का इमरजेंसी पैक हमेशा घर में चाहिए, या महालक्ष्मी विलास हमेशा अपने साथ में चाहिए। और कुछ नहीं तो पंचकर्म की एक नीडल, अग्निकर्म की शलाका, वेदन कर्म की सिरिंज, इतने भी जेब में रहते तो कई इमरजेंसीज हम हैंडल कर सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जिसके लिए सेपरेट समय लगेगा, जो कि एकदम पंक्चुअल चल रहा है, इसलिए मैं भी रुकता हूँ। आज अभी एक इमरजेंसी के बारे में हर एक को साहस करना है, ना कि लीगल एस्पेक्ट को डर के रुकना है। तो ये सब करना है। आज कल जब मैं नासिक से आ रहा था तो एक ट्रक के पीछे लिखा था, बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, अक्ल सिर्फ ठोकर खाने के बाद आती है। तो इसलिए ठोकर उसी को लगेगी जो करेगा। तो इसलिए सब करते जाओ, हंसते रहो, हंसाते रहो। हम आयुर्वेद वाले, हम कभी रोते नहीं, कभी रुलाते नहीं, और किसी को रुलाने के लिए मजबूर भी नहीं करते हैं। तो लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजी को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, वरना आंखों में तो आंसुओं को भी पनाह नहीं मिलती। धन्यवाद। Thank you, sir, for your valuable thoughts and guidance.